مولانا صاحب میں نے کیے سر اس کے منہ پہ لگام دے دو. مولانا صاحب دے دو. آپ ایڈریس کریں. ایڈریس چیئر. تقریر کی ہم نہیں بولے. آپ نے کور کمانڈر اور آئی جی کے بارے میں غلط باتیں کی. ایڈریس چیئر. آپ نے مولانا اپنے حق میں برداشت کرو برداشت کرو. ابھی آئے ہیں گوادر کا سمگلر چور. بیٹھو بیٹھ جاؤ بیٹھو. تشریف رکھیں مولانا صاحب. مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. بٹھائیں بٹھائیں مولانا صاحب کو بٹھائیں. چھوڑ دیں. علی محمد تشریف رکھیں پلیز. اپنا بیٹھے مولانا صاحب بیٹھے پلیز. بیٹھے سادے کو پلیز کنٹینیو اپنے اسپیچ کے ساتھ. اپنے اوکے مولانا صاحب بس کافی ہے میرے خیال میں. اب اسپیکر صاحب بہت سی تقریریں ہوئی یہاں پہ آرڈر پلیز. اور حکومتی پالیسیوں پہ تنقید تجاویز اور ایسے ادارے جو اس صوبے کی بہت ذمہ دار شخصیات ہیں ان کے بارے میں مولانا کی تقریر کی میں شدید الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں. چوکیدار مالک اچھا ہو تو چوکیدار اپنے فرائض اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں. یہ گوادر کی گلیوں میں کی تقریریں یہاں مولانا صاحب نہ کریں. کور کمانڈر اور آئی جی صاحب اس ریاست اس حکومت کا حصہ ہے. جس طریقے سے یہ پارلیمنٹ ہے وہ بھی ہمارے اس پالیسی ساز ادارے میں شامل ہیں. جو حکومت جو بحث مباحثہ اس پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے اور چیف منسٹر اس پالیسیوں پہ امپلیمنٹ کراتے ہیں انہیں اداروں سے. جب یہاں پہ آپ کھڑے ہو کر ایک واحد شخص مولانا صاحب آپ ہیں جو اس قسم کی غلط حرکاتیں کرتے ہیں. یہ گوادر کا جلسہ نہ سمجھو. یہاں پہ اس پارلیمنٹ کے لیے پیپلز پارٹی نے ہمارے قائدین نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں جیلوں کی اذیتیں برداشت کی ہیں. ایڈریس دی چیئر پلیز. صادق ایڈریس چیئر پلیز. جی جناب اسپیکر پلیز آپ جناب اسپیکر جی جہاں تک اس واقعے کی تعلق ہے اس پوری ایوان میں ہماری ممبران بیٹھے ہیں اور ہمارے ذمہ داران بھی یہاں پہ ڈی آئی جی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہوم سیکرٹری کمشنر صاحب کیونکہ وہ بول نہیں سکتے وہ لکھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ ان کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے. اور اس سلسلے میں چیف جسٹس صاحب نے بھی 2 دفعہ کال کیے ان کے لوائقین کو جس میں چیف سیکرٹری صاحب موجود رہے آئی جی صاحب ہوم سیکرٹری کمشنر صاحب. یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو یہاں پہ اوپن کرنے کی ان کی باتوں کو ضرورت نہیں ہے. ریاست اور چیف منسٹر صاحب یا ریاستی ادارے لا انفورسنگ ایجنسیاں جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے محسوس کرتے ہیں. وہ فرائض وہ کام اسی پہ کر رہے ہیں. سب کی ہمدردیاں ہیں صرف ایک پارٹی کی نہیں ہے. جو پارٹی بنگلہ دیش میں دہشت گردی پھیلاتے رہے کراچی میں دہشت گردی پھیلاتے رہے یہ دہشت گردی آج صرف بلوچستان میں نہیں ہو رہا ہے پورے ملک میں پوری دنیا کے اندر یہ دہشت گردی کی لہر ہے. اس لہر کا مقابلہ جیسے ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کا بلوچستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا یہاں کے قبائل کا یہاں کے جو لوگ اس پارلیمنٹ کے حصہ نہیں ہیں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. آؤ پچھلے دفعہ جب ایک واقعہ ہوا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ڈاکٹر مالک بلوچ کی قیادت میں چلنے کے لیے تیار ہیں تمام مسائل پہ. یہ تمام
सब लोगों का मसला है। अगर यहाँ आकर रोजाना हम सिर्फ इस इशू पे बहस करें कि जी ये हुआ, यहाँ पे कोयटा रेलवे स्टेशन पे धमाका हुआ, कितने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियों के इदारे के लोग शहीद हुए, क्या मौलाना साहब ने यहाँ फातेह पढ़ी, क्या मेजर हरनाई में शहीद हुए, क्या उसकी माँ बाप नहीं थी, क्या उसकी बीवी नहीं थी, उसके लिए आपने बात की? हजारों की तादाद में कल्लात में परसों रात हमला हुआ, वहां पे एफसी के जवान शहीद हुए, क्या आपने उसके लिए ताजियत की? ठीक है, बात यह है कि बात करना मौलाना साहब हमें भी आता है, हमारे जो पार्लियामेंट्री हुकूमती जमायत में दोस्त बैठे हैं उनको भी आता है, लेकिन पूरी हुकूमत को, हुकूमत पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, कोर कमांडर, IGFC, होम सेक्रेटरी, DIG, IG, तमाम इदारे की दिन रात ये कोशिश है ये बच्चा जिंदा वापस आ जाए, जबकि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। कल अगर IG, DIG साहब मुझे कहते हैं कि सादिक आप कल बोलान में नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। जब इदारे किसी को इतला देते हैं कि ये खदशात हो सकते हैं कल, तो उन खदशात के पेश नजर हमें अपने सिक्योरिटी का, अपने उन बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये सिर्फ यहाँ एक मैं बताता चलूँ आप दोस्तों को कि ये चीफ मिनिस्टर के खानदान, उसके बच्चों को भी अगवा करने का प्रोग्राम था इन लोगों का। ये लियाकत लहरी साहब बैठे हैं सामने, इनके बच्चों के लिए भी टारगेट था। एक मुलजिम पकड़ा गया है जिसने इस बात का इंकशाफ किया। मैं यकीन दिलाता हूं चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, कि हम और हमारी हुकूमत, मुस्लिम लीगी दोस्त भी बैठे हैं हमारे यहाँ पे सूबे के अंदर, इत्यादी हैं वफाक में भी, सूबे के अंदर भी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये बच्चा बासलामत अपने खानदान, अपने बच्चों, माँ बाप के पास आ जाए। धरने से जो लोग धरना दे के बैठे हैं, मैं कहता हूं कि खैर ख्वाह नहीं है उस बच्चे का। मौलाना साहब आप भी धरने में जाकर बैठ के तकरीरें करते हो, मुश्तिल करते हो, इश्तियाल दिलाते हो, ये खैर ख्वाही का रास्ता नहीं है। खैर ख्वाही का रास्ता ये है कि अंडर टेबल हमारे लॉ एनफोर्सिंग इदारे जो हैं, जो काम कर रहे हैं इस पे दिन रात, आप क्या समझते हैं कि होम सेक्रेटरी को आपने अभी बुला के 6 घंटे यहाँ बिठा दिया है? अगर 6 घंटे वहां दफ्तर में बैठ के काम करते इसी इशू पे, हमने उन लोगों का वक्त जाया किया। हमने तमाम दोस्तों ने ये तजवीज़ थी, अपोजिशन के दोस्तों से भी, मैं उनके पास चला भी गया। हमने कहा कि जी जनाब ये चीफ मिनिस्टर आएंगे इस इशू पे। चीफ मिनिस्टर ने कल रात 2 घंटे उसके वालिदैन को समझाया, बताया, हकायक बताए कि हम काम कर रहे हैं। ये हमारे इलाके में अगवा बराए तावान की वारदातें शिकारपुर, लालकाना, नसीराबाद में बहुत होते थे। इसको का तरीका ये है, बाअसर कबायली लोग, उनका असर होता है, जिनका बॉर्डर पे उस तरफ भी ताल्लुक है, इस तरफ भी ताल्लुक है। मैं कहता हूं, मैंने जमरुल खान को अभी कहा था भाई जाओ आप, मैं कैप्टन अब्दुल खालिक साहब को भी दरख्वास्त करूंगा, आप बॉर्डर पे रहते हैं, आपका असर रसूख है। असगर तरीन साहब बैठे हैं पश्चिम से, उनका ताल्लुक है उस इलाके से, असर रसूख है, तो वो भी अपने कबायली सियासी असर रसूख इस्तेमाल करें, राब्ते करने की कोशिश करें। हम इदारों से मिलकर कि भाई जहां तक हम ताउन कर सकते हैं, पूरी ऐवान इस बच्चे की बरामदी के लिए अगर मौलाना साहब आप कहते हो, अभी हम पूरी ऐवान चले जाते हैं, चमन में बैठते हैं, लेकिन जो तरीका कार है हुकूमत का, उसको उन तरीकों पे चलने का मौका दें। देखें, ये बातें यहाँ फ्लोर पे करने की नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की जब मीटिंग होती है, मैं पार्टी का बानी हूँ, मैं सीनियर आदमी हूँ, लेकिन मैं उस मीटिंग में जाकर बैठता नहीं हूँ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर, कोर कमांडर साहब, होम सेक्रेटरी, कमिश्नर, जो इंतजामिया है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। ये कहना गलत कि डिप्टी कमिश्नर, होम सेक्रेटरी या ये सारे लोग बेबस बैठे हुए हैं,
ये हुकूमत मखरूत हुकूमत है बलूचिस्तान की। आपको जिस तरीके से मैं MP हूं मौलाना साहब, आपको भी उतने मरात मिलते हैं। बात खोलने की न खोलने दें, हम कोशिश करते हैं। मैं आपने तकरीर की, मैंने मुदाखलत नहीं की, मैंने तकरीर नहीं की आपके बारे में। आप करप्शन बताएं। मौलाना साहब किया मैंने किया सर, इसके मुंह पे लगाम दे दो। मौलाना साहब लगाम दे दो। आप मुझे एड्रेस करें, एड्रेस आपने चेयर। तकरीर की, हम नहीं बोले। आपने कोर कमांडर और IG के बारे में गलत बातें की। एड्रेस चेयर। आपने मौलाना अपने हाथ में बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। अभी आए हैं ग्वादर का समग्र चोर। बैठो, बैठो, बैठो। तशरीफ रखिए मौलाना साहब, मौलाना साहब, मौलाना साहब, मौलाना साहब तशरीफ रखिए, मौलाना साहब तशरीफ रखिए। बिठाएं, बिठाएं मौलाना साहब को, बिठाएं, छोड़ दे। अली मोहम्मद तशरीफ रखिए प्लीज। अपना बैठे, बैठे मौलाना साहब, बैठे प्लीज, बैठे। सादिक प्लीज कंटिन्यू अपने स्पीच के साथ अपने। ओके मौलाना साहब, बस काफी है मेरे ख्याल में। सादिक कंटिन्यू प्लीज। उन्होंने कोर कमांडर IG के बारे में जो रिमार्क्स दिए मौलाना ने, वो अदब किए जाए। जी जी बातें की सर जी। और आप वफादारी न पाओ अपने वफादार है, हम वफादार है, हम वफादार है। तुम्हें वफादारी रखो। जो भी अल्फाज इस्तेमाल हुए आज के सेशन में किसी इदारे के मुतालिक या शख्सी किसी अशखास के मुतालिक इस्तेमाल हुए, वो तमाम अल्फाज आज की कार्रवाई से हाज़िब किए जाते हैं। मैं एक फाइनल रिमाइंडर वो तमाम पार्लिमानी लीडर्स को के सेशन के बाद आपसे गुजारिश है कि स्पीकर चैम्बर में तशरीफ लाएं, ताकि आपको आज तक की जो भी प्रोग्रेस है इस लड़के की तलाश के मुतालिक आपको ब्रीफ किया जाए। अब असम्बली का इजलास बरोज जुमा मोरखा 22 नवंबर 2024 बवक्त दोपहर 3 बजे तक मुलतवी किया जाता है।